Good morning students, let us begin our discussion. We are discussing Fourier transform. First, let us try to understand what is integral transform. Given a function of x or a function of t, integral x1 to x2 f of x into ksx dx is integral transform. Integration is with respect to x, the limits will be substituted after integration, limits are x1 and x2 and the resultant will be a function of s. Ksx is called kernel. So, this represents any integral transform in general of a function f of x. Integral transform of a function f of x is a function in another variable. This is f of x, integral transform, converting it to another function in another variable. So, in such a case, when f of s is integral transform of f of x, then f of x is called inverse transform of f of s or f bar s. Now, if the kernel function is e raised to minus sx, e raised to minus sx, if this kernel function is e raised to minus sx, see if it is a function of s and x, then it is Laplace transform whose lower limit is 0 and upper limit is infinity. So, definition of Laplace transform is, given a function f of x, Laplace transform of f of x is integration from 0 to infinity e raised to minus sx into f of x dx. This is Laplace transform. We are discussing Fourier transform. Laplace and Fourier both are integral transforms. Fourier transform has application in solving partial differential equation which are concerned with heat equation and wave equation. They are also used in digital signal processing. Now, in integral transform, if the kernel becomes e raised to minus isx, lower limit is minus infinity and upper limit is infinity, then the transform becomes a Fourier transform, also called as Fourier complex transform. So, what are we doing? We are taking the limit minus infinity, second limit is infinity, and the kernel function is e raised to minus isx. Some books take e raised to minus isx as kernel function for Fourier transform. Some may take e raised to isx. Wherever it is taken as e raised to minus isx, then the inverse Fourier will be e raised to plus isx, and wherever they take e raised to isx as the Fourier, the inverse will be e raised to minus isx. So, that will not make lot of change. We will prefer kernel for Fourier transform as e raised to minus isx. I hope this point is clear to you. Now, what is x1 equal to minus infinity and x2 equal to infinity? See, this is real line, this is 0, 0 is real number, here are positive real numbers to this side of the real line, say 1, say 2, say 3, and towards this side there are negative real numbers, minus 1, minus 2, minus 3. These are integer values. There are real numbers in between two integers. There are infinitely many real numbers
in between two integer values. So this is real line. X is taking value from minus infinity to plus infinity. So if you imagine this minus infinity to infinity, the function is like this. Suppose this is how the function looks like. This is how the function looks like. So for this function we perform transform, Fourier transform. Is it clear, dear students? Shall I proceed further? Shall I proceed further? Yes, ma'am. Yes. Now you see the concept of Fourier transform is derived from Fourier integrals. If you refer books, firstly you will see Fourier integrals. Fourier integrals is not a part of your syllabus. We have only Fourier transforms. तो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म कहाँ से स्टार्ट हो गया? फोरियर इंटीग्रल से. फोरियर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है तो उसकी प्रस्तुति इंटीग्रल के माध्यम से ऐसी की जा सकती है. दो इंटीग्रल्स है, अंदर का इंटीग्रेशन करके फिर बाहर का इंटीग्रेशन. इस अंदर वाले इंटीग्रेशन को बाद में फोरियर ट्रांसफॉर्म कहा गया और उतने ही पार्ट पे हमें ध्यान देना है. अब फोरियर ट्रांसफॉर्म्स कैसे निकालने हैं? पहला टेबल. बेसिकली इस चैप्टर में हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, इंटीग्रेशन परफॉर्म करने हैं. फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म. Why it is said complex? Because there is imaginary number I. So given a function f of x, Fourier transform f of s, capital F of s is 1 upon root 2 pi integration from minus infinity to infinity f of x into e raised to minus isx dx. So this is a definition of Fourier transform. f of x साठी Fourier transform कसा काढणार आपण? 1 upon root 2 pi integration from minus infinity to infinity f of x into e raised to minus isx dx. इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x परफॉर्म कर लीजिए, लिमिट्स दे दीजिए और s का फंक्शन जनरेट हो जाएगा. वो कहलाएगा फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन. अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म की ये डेफिनेशन हम लेते हैं तो उस केस में इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होगी 1 upon root 2 pi integration from minus infinity to infinity f of x into e raised to isx ds. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ने क्या किया? x के फंक्शन को दूसरा फंक्शन बना दिया जो s में होगा या लैम्डा में होगा. इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ने क्या किया? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ने किया इस फंक्शन जो s या लैम्डा में है उसे x या t में बना दिया. फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ x को कैपिटल F ऑफ s के पास लेके गया और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल F ऑफ s को स्मॉल f ऑफ x के पास लाकर छोड़ देता है. जैसे कि बच्चे स्कूल गोइंग किड्स होते हैं, ऑटो रिक्शा वाला मामा आता है, उनको घर से स्कूल छोड़ेगा, फिर स्कूल फिनिश होने के बाद में स्कूल से फिर घर लाके छोड़ देगा. वैसे ही फोरियर एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है. आई होप द एग्जाम्पल इज एप्ट एग्जाम्पल. तो जब कभी फोरियर ट्रांसफॉर्म की ये डेफिनेशन रहेगी तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की ये डेफिनेशन जाएगी. इसी लाइंस पर
कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा गया क्योंकि e रेज़ टू माइनस आई एस एक्स है, आई इमेजिनरी नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ -1. फोरियर साइन ट्रान्सफॉर्म एक्सपोनेन्शियल फंक्शनच्या ऐवजी साइन फंक्शन असेल तर त्याला म्हणायचं फोरियर साइन ट्रान्सफॉर्म. आता इथे बघा लिमिट किती होती, -∞ ते इन्फिनिटी पूर्ण रियल लाईनवरती. इथे लिमिट अर्धी झाली, 0 ते इन्फिनिटी त्याचा अर्धा आहे ह्याचा, मग ते डबल होईल ना. मग ते तर 2 टाइम्स 1/√2π becomes √2/π. तर फोरियर साइन ट्रान्सफॉर्म ची डेफिनेशन काय आहे? फोरियर साइन ट्रान्सफॉर्म ऑफ अ फंक्शन f of x is a function in s or lambda denoted by f suffix s of f of x as square root of 2/π integration from 0 to infinity f of x into sin sx dx. अगर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की ये डेफिनेशन है तो इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा? f ऑफ x देगा आपको, क्योंकि आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s करोगे, लिमिट्स s की सब्सटीट्यूट करोगे. सो इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म इज, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज f of x equals to √2/π integration from 0 to infinity f suffix s of s into sin sx ds. ऐसे ही फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है. फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन f of x is denoted by f suffix c of f of x. It is a function of s, so it is also denoted by f suffix c of s. Definition is square root of 2/π integration from 0 to infinity f of x into cos sx dx. And inverse cosine transform is defined as square root of 2/π integration from 0 to infinity f suffix c of s into cos sx ds. Integral will be with respect to s, limits will be given to s, and resultant will be a function of x. Is this clear, dear students? Complex Fourier transform, inverse complex Fourier transform, Fourier sine transform, Fourier inverse Fourier sine transform, Fourier cosine transform, inverse Fourier cosine transform. Is this clear to all of you? ये सेट ऑफ फॉर्मूलेज में क्या हुआ है, सिमेट्री मेंटेन की है हमने. जो यहाँ पर कोएफिशिएंट है, यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो है वही यहाँ पर भी है, यहाँ जो है वही यहाँ पर भी है, राइट. तो ये सिमेट्रिक हो गया, तो ये प्रेफरेबल है. कुछ बुक्स में आपको अलग सेट ऑफ फॉर्मूलेज दिखेंगे, तो वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं. टेबल 1 और टेबल 2 में क्या डिफरेंस है मैंने हाईलाइट भी किया है. यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू माइनस आई एस एक्स लिया था और इनवर्स e रेज़ टू प्लस आई एस एक्स लिया था. कुछ बुक्स में क्या रहेगा, फोरियर के लिए पॉजिटिव और इनवर्स फोरियर के लिए निगेटिव. तो उस केस में ये एक डिफरेंस रह सकता है, बट दोनों भी अपने जगह सही है. सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो, दैट इज द पॉइंट. तो ऐसे भी फॉर्मूलेज यूज होते हैं.
फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म में लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है और फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म में लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। ये हाफ करके ट्वाइस करेंगे तो 1/√2 पाई का 2 टाइम्स हो जाएगा। √2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 अपॉन √2 पाई। √2 cancels and it becomes square root of 2 by pi. Point to be remembered. तो पहले टेबल में और दूसरे टेबल में क्या डिफरेंस है? फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन e⁻⁻⁻ लिए सेकेंड टेबल में, और ऊपर वाले टेबल में e⁻⁻⁻ लिए है। हम टेबल नंबर 1 प्रेफर करने वाले हैं। कुछ बुक्स में एक अलग सेट ऑफ फॉर्मूलेज भी यूज होते हैं। व्हाट आर दे? फोरियर ट्रांसफॉर्म में वो कोएफिशिएंट इन्वॉल्व ही नहीं करते, सिर्फ लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f(x) e⁻⁻⁻⁻ dx। ये पॉजिटिव ले लिया और यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं लिया, कोएफिशिएंट 1 ले लिया, और ये 1/2 पाई, इसको क्या दे दिया उन्होंने? 1/2 पाई। हमने क्या किया था ऊपर के टेबल्स में? 1/√2 पाई फोरियर में दिया और इनवर्स फोरियर में 1/√2 पाई दिया। इन्होंने कलेक्टिवली इसका रिजल्टेंट, इनके प्रोडक्ट का रिजल्टेंट इनवर्स को ही दे दिया है। वैसे ही यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 हो गया और यहाँ पर √2 बाय पाई इंटू √2 बाय पाई का 2 बाय पाई एक ही साइड पे ले लिया है, बाकी सब सेम है। यहाँ पर कोएफिशिएंट उन्होंने 1 लिया है और इधर भी 2 बाय पाई दे दिया है। तो इसमें क्या किया है उन्होंने? ट्रांसफॉर्म्स लेते वक्त कोएफिशिएंट 1 रख दिए है और जितना भी कोएफिशिएंट था वो पूरा इनवर्स को दे दिया है। बट हम सिमेट्रिक जो भी है वो वाला प्रेफर करेंगे, एक्सपोनेंशियल को -i⁻⁻⁻ लेंगे। एग्जाम में अगर -i⁻⁻⁻ के बजाय i⁻⁻ भी आए तो वो सही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो भी एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूलाज हो गए, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म। एनी क्वेश्चंस? टेबल 1 में फोरियर में e⁻⁻⁻⁻ लिया टेबल 1 में, और सिमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हाफ हाफ दोनों तरफ दिए। टेबल 2 में एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव लिया फोरियर में और हाफ हाफ दिए थे कोएफिशिएंट, लेकिन टेबल 3 में कोएफिशिएंट सिर्फ इनवर्स को लगा दिया है। अलग अलग बुक्स अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट करती है, सब अपने जगह सही है। अब आते हैं यहाँ पर, आपको दिया जाएगा एक फंक्शन जो x या t में होगा और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा जाएगा। ओके, f(x) function will be given and you have to obtain Fourier transform of that function. So there is one method. f(x) किंवा f(t) दिलेला असेल त्या फंक्शन मध्ये x च्या ऐवजी -x ठेवायचं, x च्या ऐवजी -x ठेवायचं आणि f of -x ची किंमत काढायची। जर तुम्हाला रिलेट करता आलं, मी एक एग्जांपल घेते, f(x) x² दिला समजा मी, f(x) = x² दिला, तर आधी काय करायचं, x च्या ऐवजी -x ठेवायचं डेफिनेशन मध्ये, -x ठेवलं
एक्सच्या ऐवजी स्क्वेअर जशाला तसं. मायनस एक्सचा स्क्वेअर किती असतो? मायनस एक्स इंटू मायनस एक्स किती असतं? एक्स स्क्वेअर. निगेटिव नंबर हो पॉजिटिव नंबर हो सेम नंबर्स है, साइन चेंज है तो स्क्वायर दोनों का सेम ही आएगा. 2 हो चाहे -2 हो, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4. तो f ऑफ माइनस एक्स निकाला मैंने और मैं f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ एक्स को रिलेट कर पा रही हूँ. मैं मेरे फाइंडिंग्स क्या है? f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ एक्स. डू यू एग्री विद दिस डियर स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर फंक्शन लिया, एक्स स्क्वायर फंक्शन के लिए फाइंडिंग्स क्या है हमारे कि चाहे x हो चाहे माइनस एक्स हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों का सॉरी f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स. ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? तो इस फंक्शन को कहेंगे इवन फंक्शन. क्या कहेंगे इसे? इवन फंक्शन. अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करूं, सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, x f ऑफ x, y is equal to f of x. A function defined for real numbers and is taking real value. Function defined for real numbers and taking real value. तो ये फंक्शन इधर माइनस एक्स है और ये सपोज ऐसा है. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है ग्राफ से? ये x है, सपोज x2 है तो उसके लिए f की वैल्यू कितनी आ गई? ये है. यहाँ पर -2 है, उसके लिए f की वैल्यू कितनी आ गई? उतनी ही है. तो इसका क्या मतलब है? चाहे x हो चाहे माइनस एक्स हो, दोनों का f तो सेम आ रहा है. तो ये इवन फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है. इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट y एक्सिस. y एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जैसा इधर है उसका प्रतिबिंब इधर है, उसका रिफ्लेक्शन इधर दिख रहा है. जैसा इधर है वैसा उधर है. तो ऐसे फंक्शन इवन फंक्शन होते हैं. अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ. f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स. f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स. तो क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? यस एनीवन? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स इवन है या ऑड है? इवन. f ऑफ x इक्वल टू एक्स ऑड है या इवन है? ये कैसे पता करोगे? ऑड. ऑड कैसे पता करेंगे? x की जगह माइनस एक्स रख करके एक्सच्या ऐवजी माइनस एक्स ठेवलं आणि नंतर बघायचं f ऑफ माइनस एक्स आणि f ऑफ एक्सला आपण रिलेट करू शकतो का? मग रिलेट करण्याची स्थिती आहे. माइनस ॲज इट इज x इज नथिंग बट f ऑफ एक्स. तर आपण काय रिलेशन स्थापित करू शकलो आहे? f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ f ऑफ एक्स. ये हम इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं ना, रिलेट कर पा रहे हैं. और अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ f ऑफ एक्स आता है तो वो ऑड फंक्शन कहलाएगा. तो x f ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये ऑड है या इवन है? f ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ऑड है या इवन है? ऑड. ऑड है. यस. What about f of x is equals to minus 2x? Odd या even? इवन. Even. मैंने x की जगह माइनस एक्स रखा, x की जगह माइनस एक्स रखा, मुझे 2x मिलता है. तो 2x
is minus of f of x. f of x minus 2x है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 माइनस ऑफ f of x इज 2x. तो मैं क्या रिलेशन स्थापित कर पा रही हूँ? f of minus x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f of x. तो ये ऑड है या इवन है? ऑड. मतलब इवन तो नहीं है, क्योंकि मैंने इवन के लिए आपको क्या बताया था, चाहे x हो चाहे माइनस x हो, दोनों की f की वैल्यू सेम आने वाली है. ये ग्राफ ले लो, ये ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है. y के इधर जैसा दिखता है, ये जैसा दिख रहा है वैसा ही इधर दिख रहा है ना. ये सिमेट्रिक अबाउट y, इट इज इवन फंक्शन. चाहे x था चाहे माइनस x था, दोनों की f की वैल्यू सेम आई. f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x, वैल्यू सेम आ रही है तो वो इवन फंक्शन होता है. लेकिन अगर f ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x, तो वो ऑड कहलाता है. मतलब ऑड का फिगर कैसे आएगा? कोई एक फंक्शन ले सकते हैं हम, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x. इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं. f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, जो x की वैल्यू है वही f है, तो ये पॉजिटिव x के लिए ऐसा बन गया. यहाँ पर निगेटिव x है, जो x की वैल्यू है वही f की वैल्यू है. x निगेटिव तो उनके x भी निगेटिव, उतना ही मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया ऐसे. तो ये f ऑफ x इज इक्वल्स टू x का ग्राफ है, y इक्वल टू x. तो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. जैसा x के ऊपर दिखता है वैसा ही x एक्सिस के नीचे दिखता है. इट इज ऑड फंक्शन, इट इज ऑड फंक्शन. Let me ask you one thing. Sin theta, f of theta equal to sin theta, ये ऑड है या इवन है? sin theta फंक्शन ऑड है या इवन है? Yes, what is your answer? ऑड. ऑड. Very good. इवन मैम. इवन. साइन थीटा हा ऑड फंक्शन आहे, बिकॉज वी नो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा. हे प्लीज रिकॉल करा. हे जर एफ ऑफ थीटा असेल तर माइनस एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू दिस इज एफ ऑफ माइनस थीटा. तर what holds for sin theta is f of minus theta is minus of f of theta. So sin function is a odd function. sin का ग्राफ भी देखिए ना आप, sin function का ग्राफ देखिए how it looks like. मॅम कॉस फंक्शन इवन येईल का? हाँ, cos इवन आहे, cos फंक्शन इवन फंक्शन आहे. ये देखो, ये मैंने एक्स वाई प्लेन निकाल लिया. साइन ऑफ 0 0 होता है और साइन फंक्शन ऐसा ग्राफ होता है, ऐसे ऐसे. तो ये अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, जैसे ऊपर दिख रहा है वैसे नीचे दिख रहा है. So this is symmetric about x. So it is odd function. आता कोसाइन फंक्शन घ्या. cos of theta, cos of theta is equal to cos of minus theta. This is proven. It is a fact. It is a formula. It has been proved कि cos of theta is cos of minus theta. चाहे निगेटिव एंगल हो चाहे पॉजिटिव एंगल हो, दोनों के लिए सेम वैल्यू होती है कॉस की. साइन 30 इज नॉट एज साइन माइनस 30, साइन का डिफरेंस रहेगा.
साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन माइनस 30 इज -1/2. वैसे कॉस के केस में नहीं है. cos 30 इज इक्वल्स टू cos माइनस 30 डिग्री. सो cos इज इवन फंक्शन. cos इज इवन फंक्शन. इसीलिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते समय आपको पता चला कि फंक्शन इवन है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा केवल फक्त फोरियर कोसाइन ट्रान्सफॉर्म मध्ये. तर आपण काय करायचं आहे, आधी चेक करायचा. तुम्हाला प्रश्न आला की फोरियर ट्रान्सफॉर्म काढा, तर सर्वात पहिले तुम्ही चेक करायचं दिलेला फंक्शन ऑड आहे का इवन आहे. तिसरी केस असू शकते की तो इवन पण नाहीये आणि ऑड पण नाहीये. तो एक्झाम्पल पण मी घेईन. तुम्हाला विचारलं फोरियर ट्रान्सफॉर्म, तुम्ही सर्वात पहिले फोरियर ट्रान्सफॉर्म काढण्यासाठी फंक्शनचा नेचर डिटेक्ट करा. नेचर डिटेक्ट करून इवन ऑड माहीत पडलं तर पुढचा टास्क सोपा होतो. कसा सोपा होतो, समजा तो इवन आला तर त्याचा फोरियर ट्रान्सफॉर्म फक्त त्याचा फोरियर कोसाइनवाला ट्रान्सफॉर्म होतो. तो ऑड असला तर त्याचा फोरियर ट्रान्सफॉर्म फक्त फोरियर साइनमध्ये कन्वर्ट होतो. आणि तो नायदर इवन नॉर ऑड असला तर मग मात्र हाच फॉर्म्युला, हाच बेसिक फॉर्म्युला ज्याच्यात -इन्फिनिटी ते इन्फिनिटी इंटिग्रेशन करावं लागतं, हाच फॉर्म्युला वापरावा लागतो. त्याला पर्याय नाही. इवन फंक्शन डिटेक्ट न करता फोरियर ट्रान्सफॉर्म विचारला आणि तुम्ही हाच फॉर्म्युला वापरला तरीही चालतं. पण नेचर डिटेक्ट केलं की हे इंटिग्रल अर्ध होऊन जातं आणि एक्सपोनेन्शियल आय च्या ऐवजी कॉस sx ही रिअल व्हॅल्यू फंक्शन असते. हा रिअल व्हॅल्यू फंक्शन, तेवढा फरक पडून जातो. म्हणजे हे सोपं पडतं. नेचर डिटेक्ट करून इवन असेल तर त्याचं फोरियर कोसाइन काढायचं फक्त, तेच त्याचा फोरियर ट्रान्सफॉर्म असतं. ऑड असेल तर फंक्शनचा फोरियर ट्रान्सफॉर्म हा फक्त फोरियर साइन होऊन जातं, त्याचं फोरियर साइनवाला ट्रान्सफॉर्म होऊन जातं. आणि नायदर इवन नॉर ऑड असेल, ऑड पण नाही आणि इवन पण नाही आहे, तर मग त्या केसमध्ये कॉम्प्लेक्स ट्रान्सफॉर्मच तुम्हाला इव्हॅल्युएट करावं लागतं. 1/2 पाय इंटिग्रेशन फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of x इंटू e−isx dx. आता एक एक्झाम्पल घेते मी. e⁻ ix किंवा e⁻x. e⁻x हा फंक्शन ऑड आहे का इवन आहे का नायदर इवन नॉर ऑड आहे? काय मत आहे तुमचं? व्हॉट इज युअर ओपिनियन? व्हॉट इज युअर ओपिनियन? व्हाट इज योर ओपिनियन? e⁻x फंक्शन ये ऑड है या इवन है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? नाइदर इवन नॉर ऑड. नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि e⁻x ये x का फंक्शन है. मैंने x के जगह पे -x रख दिया, e⁻x हो गया. आप इसमें और इसमें यानी f ऑफ x में और f ऑफ x में कोई ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश कर पा रहे हो क्या कि f ऑफ -x माइनस ऑफ f ऑफ x है या फिर दोनों का f सेम है? इनमें से कोई भी इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो आप. मतलब ये कौन सी कैटेगरी में चला गया? नाइदर इवन नॉर ऑड की कैटेगरी में. आ रहा है आपके ध्यान में?
तो ऐसे फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म जो बेसिक फॉर्मूला है उसी से निकालना है। बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अगर हो और उनका फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछा जाए, फूरियर कॉम्प्लेक्स वाला ट्रांसफॉर्म, तो क्योंकि वो इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है, इसीलिए यही फॉर्म्युला यूज करना पडेगा। एक्सपोनेन्शियलचं कसं आहे, ई हा नंबर आहे 2 पॉइंट समथिंग आणि एक्स जर पॉझिटिव्ह असेल तर 2 चा पॉवर वाढेल तर तो एक्सपोनेन्शियली वाढतं, आणि एक्स जर निगेटिव्ह असेल, नेगेटिव्ह पॉवर ऑफ 2 म्हणजे 1/2⁻1 1/2⁻2 डिनॉमिनेटर वाढत चाललाय, तर ओव्हरऑल क्वांटिटी कमी होत जाते। तर हा असा ग्राफ आहे, इकडे एक्सपोनेन्शियली खाली जातं आणि इकडे एक्सपोनेन्शियली वरती जातं। सो दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि हम x के f को और -x के f को दोनों में से एक भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। कौन सा रिलेशन आ रहा है उनके बीच, e⁻x, f इज इक्वल टू e⁻x, f ऑफ -x इज इक्वल्स टू e⁻x। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या रिलेशन आ रही है, f ऑफ -x इज 1/f ऑफ x। लेकिन ऑड इवन की कंडीशन तो नहीं आ रही ना, ये ऑड इवन की कंडीशन नहीं है, तो इसीलिए ये फंक्शन ऑड भी नहीं है और इवन भी नहीं है। आ रहा है आपके ध्यान में? तो ऐसे फंक्शंस के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? This method is advantageous because if we come to know whether the function is even or odd, then the evaluation of the integral become easy। जैसे कि मैंने आपसे कहा e⁻−isx इमेजिनरी नंबर इसमें है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो ऑड इवन नेचर पता चल जाए तो कंप्यूटेशन आसान हो जाता है। इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी e⁻−isx इंटू f ऑफ s ds। तर ह्या फॉर्म्युलांचा वापर कधी करायचा, जेव्हा तुमचा फंक्शन इवन ऑड नसेल तेव्हा करायचा। इवन ऑड असेल तर ते साइन कोसाइन मध्ये कन्वर्ट होऊन जातं। अभी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, t में या x में फंक्शन होगा, उस पर कॉम्प्लेक्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म लगाइए तो उसका रिजल्टेंट s का फंक्शन होगा। इस फंक्शन पे इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म लगाया, मतलब ये इंटीग्रेशन परफॉर्म किया, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s, तो रिजल्टेंट x का फंक्शन होगा। सो दिस इज साइक्लिक इन नेचर। f ऑफ x को फॉरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ s के पास लेके गया, इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ s को f ऑफ x के पास लेकर आ गया। अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो उसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा √2 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ x इंटू कॉस sx dx। इवन फंक्शन है तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म विल जस्ट बिकम फॉरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो इस केस में इनवर्स फॉरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ही इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, एंड द वैल्यू इज f ऑफ x इक्वल टू, रिमेंबर हा s चा फंक्शन होईल फॉरियर आणि इनवर्स हा x चा फंक्शन होईल। पॉइंट टू बी नोटेड, √2 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ s cos sx ds। इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, s का फंक्शन होता है, उसका ऐसे इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं और x का फंक्शन मिल जाता है। अगर आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म उसका फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इस फॉर्मूले से उसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म ढूंढा जाएगा। इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म
का उस केस में ये फॉर्मूला रहेगा √2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity f of s into sin sx ds इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s हो जाएगा फ्रॉम 0 to infinity and resultant will be a function of x or t. Is this clear to all of you? Before proceeding further, we should know some meaning of some notations in mathematics. So this is read as mod x equal to mod x less than a, mod x less than a. तो ये सिर्फ एक इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है ना, वो mod x a से छोटा है या अन्य शब्दों में a mod x से बड़ा है. तो ये एक x नहीं होता, ये एक्चुअली एक सेट है. इट इज कलेक्शन ऑफ मेनी रियल नंबर्स. अब ये रियल लाइन ले लो, ये 0, a कोई कांस्टेंट रियल नंबर है तो ये साइड पे -a रहेगा. मॉड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? मॉड अपने आप में एक फंक्शन है. f of x इज इक्वल्स टू मॉड x. इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो वो कैसा बनेगा? x यहाँ पे यहाँ पर पॉजिटिव होते तो उनका मॉड x वो खुद होते हैं, तो मॉड x का ग्राफ यहाँ के x के लिए ऐसा होगा. ये x निगेटिव है, इनका मॉड्यूलस पॉजिटिव होगा. x निगेटिव है लेकिन मॉड x मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट, विदाउट साइन, साइन फ्री. x तो निगेटिव है लेकिन उनका मॉड x कैसा आएगा? पॉजिटिव वैल्यू. ये पॉजिटिव है ना यहाँ पर, तो ये ग्राफ आ गया आपका मॉड x का. ये -x, इधर x, और ये ग्राफ आ गया आपका मॉड x का. तो मॉड x स्ट्रिक्टली लेस देन a. इट इज अ सेट. वो सारे रियल नंबर्स, ऑल x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर्स जो -a से a के बीच में है, -a के आगे बट a से छोटे, ऐसे सारे नंबर्स को हम केवल इतनी सी इनइक्वालिटी से डिनोट करते हैं. मॉड x लेस देन a का मीनिंग समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स? यस. Mod x less than a is a set of all real numbers such that -a is less than x, -a is less than x is less than a. So it represents open interval. ओपन इंटरवल, एंड पॉइंट सोडून -a च्या पुढचे सगळे आणि a च्या आधीचे. जर इथे आहे ना फक्त स्ट्रिक्टली आहे ना, हे स्ट्रिक्टलीच्या ऐवजी इक्वल असलं असतं तर मग एंड पॉइंट्स इन्क्लुडिंग असतात आणि त्याला असं स्क्वेअरने डिनोट करतो आपण. मॉड x लेस देन ऑर इक्वल टू a म्हणजे मॉड x इक्वल टू a पण घ्या, ते पण घ्या, म्हणजे हे दोन्ही नंबर्स. सो दिस इज हाउ वी इंडिकेट दैट. सो मॉड x लेस देन a का मीनिंग समझ में आ रहा है सभी को? mod x greater than a, mod x greater than a, what is it? So now let us try to understand what do we mean by mod x greater than a. मतलब वो सब a जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू a से ज्यादा है. ये मैंने रियल लाइन ड्रॉ कर ली, ये 0 है, इधर निगेटिव नंबर्स है, इधर पॉजिटिव नंबर्स है, यहाँ पर a है, यहाँ पर -a है. तो मॉड x ग्रेटर देन a, मॉड x ग्रेटर देन a मतलब इसके आगे के x -∞ तक, क्योंकि जैसे कि मैंने a को ले लिया सपोज 2
तो माइनस ए हो जाएगा -2, -2 के पीछे -3 है, -2 के पीछे -3 है। पीछे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि -2 बड़ा है -3 से, रिमेंबर दिस। -2 बड़ा है -3 से क्योंकि वो 0 के ज्यादा नजदीक है, -3 0 से ज्यादा दूर है। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में कौन बढ़ाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू में तो -3 बढ़ाएगा। नंबर वाइज -2 बड़ा है -3 से, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू वाइज -3 बड़ा है -2 से। आ रहा है आपके ध्यान में? तो मॉड x ग्रेटर देन a भी एक सेट है, एक रियल लाइन का पार्ट है, उसको ड्रॉ करते हैं। तो उसमें कैसे नंबर्स रहेंगे? -a के पीछे के अप टू -इंफिनिटी और a के आगे के अप टू इंफिनिटी। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, मॉड x ग्रेटर देन a इज ऑल दोज रियल नंबर्स जो -इंफिनिटी से -a तक है और a के आगे और इंफिनिटी के पीछे, इन दोनों सेट्स का यूनियन, इन दोनों सेट्स का यूनियन, इन दोनों सेट्स का यूनियन। -a च्या मागचे सगळे आणि a च्या पुढचे अप टू इन्फिनिटी सगळे, हा सेट a, हा सेट b, a युनियन b हा सेट आहे मॉड x ग्रेटर दॅन a। हे नोटेशन समजले का सगळ्यांना? कुछ पूछना है क्या? लेट अस प्रोसीड फॉर अ एग्जाम्पल। फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x इक्वल टू 1 for mod x greater than mod x less than 1 and f of x equal to 0 for mod x greater than 1, and hence evaluate integration from 0 to infinity sin x upon x dx. So try to understand the question very firstly. फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है फंक्शन का। फंक्शन की डेफिनेशन क्या दी है? वो 1 वैल्यू लेता है ऐसे x के लिए। ये x कैसे? मॉड x लेस देन 1, मतलब जो x -1 से 1 के अंदर है, मतलब यहाँ पर जितने भी रियल नंबर्स बैठे हैं उनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। और बाकी सब x जिनका मॉड्यूलस 1 से ज़्यादा है, मतलब इधर के और इधर के, उन सबका मॉड x 1 से बड़ा है ना, तो उनके लिए वैल्यू 0 हो जाती है। तो फंक्शन को मैंने प्लॉट इसलिए किया है ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है? तो ये फंक्शन का नेचर है, ऐसा उसका ग्राफ है। -1 से 1 इस ओपन इंटरवल पे वो वैल्यू ले रहा है और वैल्यू 1 है। यहाँ के सभी x के लिए उसकी वैल्यू 1 है, बाकी पीछे और 1 के आगे के लिए इट इज 0। ये प्लॉट किया है मैंने ताकि आपको एक उसकी आइडिया आ सके। अब फंक्शन के नेचर को जांच लेते हैं। तो 2 वैल्यूज है तो कैसे जांचेंगे? तो जांच सकते हैं। पहले इस इंटरवल पे देखिए x को -x रखकर, और फिर इस इंटरवल पर x को -x रखकर देखिए क्या रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। अब ये इस सेट को I1 कह दिया, मॉड x लेस देन 1, इस हिस्से को क्या नाम दे दिया? पहली इंटरवल I1। यहाँ पर तो क्लियरली ग्राफ से ही दिख रहा है, x के लिए f of x कितना है? 1 है, कांस्टेंट 1 है ना, वैल्यू 1 है। तो -x के लिए भी वैल्यू 1 है। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ -x रहेगा, यहाँ पर x है तो उसका -x यहाँ पे रहेगा।
तो दोनों के लिए f की वैल्यू सेम ही है, चाहे x हो चाहे -x हो, यहाँ के f उनका सेम आ रहा है और उसकी वैल्यू 1 है। तो I1 पे कांस्टेंट था वो फंक्शन, तो चाहे x हो चाहे -x हो f सेम आ रहा है, मतलब I1 पे तो उसका बिहेवियर E1 वाला ही है। I2 पे जाते हैं, I2 मतलब यहाँ पर, यहाँ का x के लिए वैल्यू 0, यहाँ के x के लिए भी वैल्यू 0, यहाँ पर x है तो उसका -x यहाँ होगा, यहाँ पर x है तो उसका -x यहाँ होगा, इन दोनों के लिए वैल्यू सेम ही आ रही है। तो क्या रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, f of x इज इक्वल्स टू f of -x। I2 पे भी वही हो रहा है, I1 पे भी वही हो रहा है, मतलब इन टोटलिटी फंक्शन पूरी रियल लाइन पर इवन है, फंक्शन पूरी रियल लाइन पर इवन बिहेवियर है। तो इवन है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ कितना हो जाता है फिर उस केस में, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो पहली स्टेप क्या की, हमने फंक्शन का नेचर जांचा, फंक्शनचा नेचर आपण आयडेंटिफाय केला। दुसरं स्टेप काय होता, अप्रोप्रिएट फॉर्म्युला चूज करायचा, इवन आहे म्हणून कोसाइन आलं, कारण कॉस हा इवन फंक्शन आहे। तर ह्या केसमध्ये फोरियर ट्रान्सफॉर्म हा फोरियर कोसाइन ट्रान्सफॉर्म असणार। मग फॉर्म्युला लिहून घेतला आणि आता आपल्याला ट्रान्सफॉर्म करायचं आहे, म्हणजे इंटिग्रेशन परफॉर्म करायचं आहे। मग इंटिग्रेशन फ्रॉम, तर व्हॉट इज द डेफिनेशन, √2/π इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity f of x into cos sx dx। सो इट इज, आता आपल्याला जो फंक्शन दिलेला आहे त्याची व्हॅल्यू 1 आणि त्याची व्हॅल्यू 0 आहे। मॉड x लेस दॅन 1, मॉड x ग्रेटर दॅन 1, तर दोन व्हॅल्यू घेतलेली तर त्याला ब्रेक करायचं, 0 ते इन्फिनिटी ब्रेक होईल, स्प्लिट होईल, 0 ते इन्फिनिटी वर इंटिग्रेशन परफॉर्म करायचं आहे, 0 ते इन्फिनिटी वर परफॉर्म करायचं आहे इंटिग्रेशन। तर 0 ते 1 पर्यंत 1 व्हॅल्यू आहे आणि 1 ते इन्फिनिटी पर्यंत 0 व्हॅल्यू आहे। मग इंटिग्रलला स्प्लिट करायचं, 0 ते 1 आणि 1 ते इन्फिनिटी ब्रेक करायचं। f of x 0 ते 1 वरती 1 आहे आणि 1 ते इन्फिनिटी वर 0 आहे। सो 0 इंटू cos sx इज 0, इंटिग्रेशन ऑफ 0 फंक्शन इज 0, मग हा पार्ट 0 होऊन गेलेला आहे। 1 से इन्फिनिटी तक इंटिग्रेशन 0 हो गया है, सिर्फ 0 से 1 वाला सर्वाइव करेगा क्योंकि वहां पर f of x नॉन जीरो वैल्यू है इक्वल टू 1। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म अब सिर्फ और सिर्फ कितना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ cos sx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ cos sx। cos sx dx का, cos sx का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यस डियर स्टूडेंट्स, cos sx का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, cos sx का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, टाइम sx अपॉन x। यस, cos ax का क्या होता है, sin ax डिवाइडेड बाय a इंटीग्रल। तो s यहाँ पर कांस्टेंट है, तो sin sx अपॉन s ये इंटीग्रेशन की वैल्यू रहेगी। s शुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, so that becomes coefficient of x, so dividing by the coefficient, so sin sx upon s इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x झालेला आहे, तर लिमिट सबस्टिट्यूट करायची, x ला अप्पर लिमिट 1 द्या आधी, मायनस लोअर लिमिट 0 द्या, sin s इंटू 1 अपॉन s मायनस sin s इंटू 0 डिवाइडेड बाय s, तर किती होईल ते, साइन s इंटू 1 इज s, साइन s अपॉन s, and sin s into 0,
Sine of 0. Sine of 0 is 0. So the answer is root 2 by pi sine s upon s. Any doubt in this? Yes. Now we will find inverse Fourier transform. Now you may question, what is the need to find inverse Fourier transform, isn't it? Why should we find inverse Fourier transform? So there is a need. Why? Because what is the question? The question is, find Fourier transform. The question is, find Fourier transform and hence evaluate. ह्या इंटिग्रलची किंमत आपल्याला इव्हॅल्युएट करायची आहे. असंच इंटिग्रेशन परफॉर्म करण्यासाठी डायरेक्टली अवेलेबल फॉर्म्युला नसतो की यू अपॉन व्हीचा इंटिग्रल इज ऑब्टेन्ड युझिंग सम फॉर्म्युला. असा कोणता फॉर्म्युला नाही आहे. मग ह्या कन्सेप्टद्वारे आपण हे असे इम्प्रॉपर इंटिग्रल्स इव्हॅल्युएट करू शकतो. तर त्याला इव्हॅल्युएट करण्यासाठी काय स्टेप असते, तर आधी फोरियर काढून घ्यायचा, फोरियर ट्रान्सफॉर्म काढून घ्यायचा, त्याच्यानंतर इन्व्हर्स फोरियर ट्रान्सफॉर्म लावायचा आणि असं करून आपल्याला त्या रिलेटेड इंटिग्रलची व्हॅल्यू काढता येते. तर इंटिग्रलच्या इव्हॅल्युएशनसाठी आपल्याला इन्व्हर्स फोरियर ट्रान्सफॉर्म काढणंच आहे. सो लेट अस प्रोसीड. हाँ फंक्शन आलो, ठीक है. तर अभी क्या हो गया, रिक्शा वाले ने बच्चे को स्कूल में छोड़ दिया है. अब स्कूल फिनिश हो गया है, तो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म बच्चे को फिर से घर छोड़ देगा, है ना. तो ये so we find inverse Fourier transform because we are supposed to evaluate the integration from 0 to infinity sin s upon s ds. ह्या इंटिग्रलची व्हॅल्यू काढायची आहे, म्हणून आपण इन्व्हर्स फोरियर ट्रान्सफॉर्म काढूयात. सो we identified that the function is even function. We obtained Fourier cosine transform, that is itself Fourier transform, and now inverse Fourier transform will be just inverse Fourier cosine transform. So what will be the related formula? What will be the related formula? F of s in this case will be f suffix c of s equals to root 2 by pi integration from 0 to infinity capital F of s into cos sx into ds. Integral root 2 by pi integration from 0 to infinity f of s into cos sx into ds. Integration is from 0 to infinity. Integral will be with respect to s now, and the limits will be given to s, not to x. Point to be remembered. सो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं इस फंक्शन का जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है. रूट 2 बाय पाई साइन एस अपॉन एस, रूट 2 बाय पाई साइन एस अपॉन एस का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा रूट 2 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ह्या फंक्शनचा रूट 2 बाय पाई साइन एस अपॉन एस इंटू कॉस एस एक्स इंटू डी एस. नाउ वी आर परफॉर्मिंग exactly reverse way. So रूट 2 बाय पाई बाहर ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, उसको बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के. साइन एस अपॉन एस कॉस एस एक्स डी एस. इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करेगा?
एफ ऑफ एस को एफ ऑफ एक्स बना देगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity sin s upon s into cos sx ds. This root into root becomes 2/पाई. Now you have to be smart enough. हमें कौन सी इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है? sin s upon s ds की. Is it? Okay. आवाज आ रही है ठीक से मेरी? Am I audible clearly, dear students? Hello? Yes, am I audible, dear students? And is the screen visible? Yes, yes. Yes, हाँ यस मैम. yes. तो अभी तक हमने दिए हुए फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला. अब हम उसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें इंटीग्रल की वैल्यू ढूंढनी है. इंटीग्रल की वैल्यू ढूंढने के लिए हमने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया और ये इक्वेशन मिल रही है कि f of x is equals to 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity sin s upon s cos sx ds. हमें किस इंटीग्रल की वैल्यू ढूंढने के लिए कहा है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity ये है sin s upon s, ये भी है उसमें और ds भी है. तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? cos sx. अगर हम ये सोचे कि हमें उस इंटीग्रेशन को ढूंढना है तो इसको और उससे कंपेयर करेंगे तो ये एडिशनल दिख रहा है. ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए तो इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी हमें. और ये 1 कैसे होगा? s तो 0 से इन्फिनिटी चेंज हो रहा है. s कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले रहा है? 0 से इन्फिनिटी. तो मैं अगर x को 1 रख दूं, x को 0 रख दूं, x को 0 रख दूं तो s इंटू एक्स होगा s इंटू 0. s इंटू 0 इज 0. तो मैं केवल अगर x को 0 रख देती हूँ ना तो मेरा cos sx बन जाएगा cos ऑफ 0 और cos ऑफ 0 होता है 1. तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो. x को 0 रखा, cos sx 1 हो गया और ये इंटीग्रल उस इंटीग्रल को मैच कर रहा है जिस इंटीग्रल की वैल्यू हमें पूछी है. तो ये तो हेल्पफुल है, फ़ायदेमंद है. तो मैंने x को 0 रख दिया. व्हाट हैव आई डन? इस इक्वेशन में x को 0 रख दिया. लेफ्ट में x को 0 रखा तो वो बन गया f ऑफ 0. राइट में रखा तो ये बन गया cos ऑफ 0. cos of 0 is 1. Remember dear students, cos of 0 is 1. तो इससे क्या हुआ? f of 0 is equals to 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity sin s upon s ds. ह्या इंटीग्रलची किंमत मला पाहिजे तर याची किंमत मला भेटू शकते कारण मला f of 0 माहिती आहे. f ऑफ 0 हमें क्यों पता है? क्योंकि फंक्शन कैसे दिया है हमको? फंक्शन दो वैल्यू ले रहा है, 1 या 0. 1 कहाँ पे ले रहा है? मॉड x लेस देन 1 पे. मॉड x ग्रेटर देन 1 के लिए वो 0 वैल्यू ले रहा है. तर 0 कुठे आहे? ह्या ग्रुपमध्ये आहे का ह्या ग्रुपमध्ये आहे? कौन से ग्रुप में है वो? ऊपर वाली डेफिनेशन उसको होल्ड हो रही है या नीचे वाली डेफिनेशन?
जीरो कहाँ पे बैठा है? ये डोमेन में है या ये डोमेन में है? ग्राफ भी ड्रॉ किया था हमने। -1 से 1 तक वो कितना वैल्यू ले रहा है? 1, और 1 के आगे और -1 के पीछे उसकी वैल्यू 0 0 ही है। तो 0 कहाँ पे बैठा है? f of 0 कितना आएगा? हाउ मच इज f of 0? Yes, anyone? Referring the given function in equation 1, दिलेला फंक्शन आहे, त्याची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला, त्याचा फोरियर ट्रान्सफॉर्म काढतोय आपण. दिलेला फंक्शन मी ग्राफिकली पण प्लॉट केला होता. जे एक्स ते एक्स जे -1 आणि 1 च्या मध्ये आहे त्यांच्यासाठी एफ ची किंमत 1 आहे आणि 1 च्या पुढे आणि -1 च्या मागच्यांसाठी 0 आहे. मग 1 इथे बसतो की -1 आणि 1 मध्ये बसलेला ना 0, त्याच्यासाठी किंमत किती एफ ची? 1. मग आपण इथे 1 लिहू शकतो. इजंट इट? आपण f of 0 1 घेऊ शकतो कारण ते दिलेलं फंक्शन आहे. दैट कैन बी टेकन. f of 0 को 1 लिख दिया. अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय π/2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय π/2, 1 into π/2 is equals to π/2 into 2/π integration from 0 to infinity sin s upon s ds. π cancels, 2 cancels, 1 into π/2 is π/2. तो देखिए मिल गया हमें. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी साइन एस अपॉन एस इज π/2. उसकी वैल्यू कितनी है? सिर्फ π/2. एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? सो व्हाट हैव वी डन? वी हैव ऑब्टेन्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन. We obtained inverse Fourier transform and then suitable value of x is equals to 0 was substituted and we could obtain the value of the integration from 0 to infinity sin s upon s, and that is π/2. Any questions dear students? Shall I proceed further? Now let us proceed for next example. Find Fourier transform of f of x equal to 1 minus x square for mod x less than or equal to 1 and f of x is equals to 0 for mod x greater than 1. So on the real line we have -1 and 1. On this particular domain the definition of f is 1 minus x square. -1 के पीछे और 1 के आगे द डेफिनेशन है 0. इस डोमेन को I1 कहते हैं और ये और ये मिलके I2 बनेगा, दोनों का यूनियन. तो I1 पे बिहेवियर चेक करते हैं. f of x is 1 minus x square, f of minus x is 1 minus x square, minus x square is x square. तो वी आर एबल टू रिलेट. रिलेशन कैसे आ रही है? f of x is equal to f of minus x. ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है I1 पर. I2 पे क्या? I2 पे तो 0 ही है, x हो चाहे -x हो, वैल्यू 0 ही है. मतलब x और -x के लिए f सेम है और उसकी वैल्यू 0 है. तो f of x is even on the entire real line. Is it? तो क्योंकि वो इवन है तो ये फॉर्मूला यूज होगा. Fourier transform will be root 2 by pi integration from 0 to infinity f of x into cos sx dx. तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. एज यूजुअल क्योंकि फंक्शन की दो वैल्यूज है, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी में ब्रेक करेंगे इंटीग्रल को, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए है और 0 है फॉर रेस्ट ऑफ द एरिया. 1 माइनस एक्स स्क्वेयर फॉर mod x less than or equals to 1, mod x greater than 1 it is 0.
0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, ये हमने कहाँ से तय किया? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है 1 तक 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है और 1 के आगे इट इज 0, तो 0 से 1 ये डेफिनेशन, 1 से इन्फिनिटी 0 डेफिनेशन। सो इसीलिए ब्रेक किया उसे, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी। फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रल को ब्रेक किया दो इंटीग्रल्स में। एफ ऑफ एक्स को लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 से इन्फिनिटी पर एफ 0 है, ये 0 हो गया, ये इंटीग्रल 0 हो गया, सिर्फ ये इंटीग्रल बचेगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? इंटीग्रेशन uv इज uv1 माइनस u dash v2 प्लस u double dash v3 minus and so on. I think you remember this formula. Integration uv is uv1 minus u dash v2 plus u double dash v3 minus and so on. तर आपण जर कंपेअर केलं तर हा अल्जेब्रिक आहे आणि हा ट्रिग्नोमेट्रिक आहे, तर लाईट रूलने u1 मायनस एक्स स्क्वेअर घ्यायचा आणि v cos sx घ्यायचा. ठीक आहे, हे u आणि v घेतल्याच्या नंतर uv1 v1 मतलब v का इंटीग्रेशन, u एज इट इज रखा, cos sx का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, माइनस u डैश v2, u डैश, तो यहां पर मैंने डैश से डिनोट किया है डेरिवेटिव, अगर आप देख पा रहे होंगे तो uv1 माइनस u डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू v1 का इंटीग्रेशन, ये v1 है और इसका इंटीग्रेशन uv1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, और इसके आगे की टर्म 0 होगी, क्योंकि देखिए u1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहला डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, u डबल डैश कितना आएगा? -2, u ट्रिपल डैश कितना आएगा? 0, थर्ड ऑनवर्ड 0 है, तो वो सीरीज वहां पे टर्मिनेट हो गई, वहीं रुक गई, वो पहली 3 टर्म्स एग्जिस्ट कर रही है। तो uv1 माइनस u डैश v2, इंटीग्रेशन सा इंटीग्रेशन इज व्हाट इज v2, प्लस u डबल डैश v3, v चा 3दा इंटीग्रेशन इज v3। तो ये कैसे लगाए हमने, फॉर्मूला आ रहा है समझ में? यस, शैल आई प्रोसीड फर्दर? हेलो, Yes. यस यस, तो आगे बढ़ते हैं। अब u एज इट इज रखा, cos sx का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, cos sx का विथ रिस्पेक्ट टू x इज sin sx अपॉन s, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 0 माइनस 2x, सो दैट इज माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन -2x यहां पर रख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन, cos sx का अभी निकाला है वो रख दिया, cos sx का अभी निकाला था वो यहां पर रख दिया, अब इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इज -2, आणि ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ cos sx, वन टाइम इंटीग्रेशन निकाला है वो यहां पे रखा है sin sx अपॉन s, और 2 बाकी है, एंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1, रिमेंबर, क्योंकि 1 से इंफिनिटी इंटीग्रल 0 हो गया है।
सो इज दिस क्लियर? ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे लगाया, ये समझ में आ गया सभी को? यस Yes, ma'am. यस u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 integration is from 0 to 1 is this much. अब ये इंटीग्रेशन बाकी है, इनको परफॉर्म कर लेते हैं. 1 minus x square as it is sin sx upon s, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, साइन sx अपॉन s का इंटीग्रल 1 अपॉन s एज इट इज, साइन sx का विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा इंटीग्रेशन? 1 अपॉन s. हाँ हाँ यस यस, 1 अपॉन s को साइड में रखो क्योंकि वो कांस्टेंट है व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. 1 अपॉन s को साइड में रखकर साइन sx का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस sx डिवाइडेड बाय s. माइनस कॉस sx अपॉन s, माइनस 2 एज इट इज. अब ये इंटीग्रेशन साइन sx का यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन s एज इट इज, साइन sx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस sx अपॉन s. अभी एक इंटीग्रल अभी बाकी है. सो फर्दर this term as it is, this term is already done. ये minus, this is 2 into minus, so it is minus, the sign becomes minus, and this is minus into minus becomes plus. The integral of 1 upon s into s cos sx, 1 upon s square को साइड में रखते हैं, cos sx का इंटीग्रेशन with respect to x is sin sx upon s. तो यही चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ. अब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है. सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स, सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स. अपर लिमिट x को 1 रखना है, लोअर लिमिट x को 0 रखना है. x को 1, 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 x को 1 रख दिया, माइनस लोअर लिमिट x को 0 रखना है. उसी फंक्शन में x को 0 रखो. इथे x ला 0 ठेवला, ह्याच्या ऐवजी इथे 0 ठेवला. कॉस मध्ये इथे 0 ठेवला x च्या ऐवजी, आणि इथे पण 0 ठेवलं. हे झालं तुमचं लोअर लिमिट. अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. हा पहिला स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणजे x ला वरचं लिमिट 1 ठेवलं. हे दुसरा स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणजे x ला 0 ठेवलं. ठीक आहे. तर व्यवस्थित आता याला आपल्याला एक्झिक्यूट करायचं आहे. इथे काय होईल, 1 मायनस 1 0 असल्यामुळे ही पूर्ण टर्म 0 होईल. ही टर्म किती होईल, मायनस 2 कॉस एस अपॉन एस स्क्वेअर, आणि ही टर्म 2 अपॉन एस स्क्वेअर इंटू साइन एस अपॉन एस. ये टर्म वैनिश हो जाएगी, 0 बन जाएगी, लेकिन दूसरी और तीसरी टर्म सरवाइव करेगी. लोअर लिमिट में क्या होगा, ये 1 है लेकिन मल्टीप्लीकेशन विथ साइन 0, साइन 0 इज 0, ये प्रोडक्ट आ गया 0. पहली टर्म इसकी भी वैनिश हो जाएगी. दूसरी टर्म में 2 इंटू 0 है, 2 इंटू 0 इज 0, सो दिस बिकम 0. पहली टर्म दूसरी टर्म 0 हो गई. नो डाउट कॉस 0 1 है, बट 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 0 हो गई. साइन 0 इज 0, तो लोअर लिमिट में तीनों भी वैल्यूज 0 0 0 है. लोअर लिमिट इज 0.
सो अपर लिमिट में पहली 2 टर्म सर्वाइव करेगी, लोअर लिमिट की सारी टर्म्स 0 बन जाती है। ये देखो, ये 2 टर्म सर्वाइव कर रही है और ये बाकी की 3 टर्म्स 0 हो गई है। इट इज -2 cos s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर साइन s अपॉन s। सो फर्दर -2 अपॉन s स्क्वायर कॉमन काढला, -2 अपॉन s स्क्वायर कॉमन लिया क्योंकि वो दोनों के पास है। साइन पॉजिटिव था लेकिन -2 कॉमन लेते हैं इसलिए फिर उसको माइनस असाइन करना पड़ेगा, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। और ऐसा माइनस साइन ही क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि जो इंटीग्रल इवेल्युएट करना है उसको मैच करना है। सो ये -2 कॉमन बाहर ले लिया और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। s इंटू कॉस एस माइनस साइन एस डिवाइडेड बाय s इंटू s स्क्वायर इज s क्यूब, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय पाई s cos s माइनस साइन एस डिवाइडेड बाय s क्यूब। ये आ गया आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म दिलेल्या फंक्शनचा। व्हॉट इज द क्वेश्चन? फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x is equals to 1 minus x square for mod x less than or equals to 1 and 0 for mod x greater than 1। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था एंड हेंस इवैल्यूएट, किसी इंटीग्रल की वैल्यू भी निकालने के लिए कहा है, तो वो पार्ट अभी बाकी है। तो वो पार्ट करने के लिए हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। तो अभी जो फ्रेशली जो फंक्शन बना है उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। ये फंक्शन अभी बना था, उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म विल गिव f of x equals to √2 by pi इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity कैपिटल F of s into cos sx ds। दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला ठीक से याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो सब गड़बड़ हो सकती है। तो फॉर्मूले अच्छे से लर्न करना है। f of s रख दिया, ये कांस्टेंट बाहर ले लिया। सो √2 by pi इंटू √2 by pi इज 2 by pi, 2 by pi and into -2 is there, so it is -4 by pi, it is -4 by pi and this integral. So let x is equals to 1 upon 2, let x is equals to 1 upon 2। अब x को 1 अपॉन 2 क्यों लेना है? क्योंकि जो इंटीग्रल पूछा है उसमें s अपॉन 2 है, इसीलिए x को 1 अपॉन 2 लिया। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s है, s को कुछ नहीं कर सकते, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s है तो s को कुछ नहीं कर सकते, x को करना पड़ेगा। और जो इंटीग्रल पूछा है वो है इंटीग्रेशन x cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब cos x बाई 2। ये इंटीग्रल पूछा है, वो ये x में दिख रहा है तो हम यहाँ पर s में दिख रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये x अपॉन 2 है और यहाँ पर sx है। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s हो रहा है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो x को ही वैल्यू दे सकते हैं। x को वैल्यू दे दी 1 अपॉन 2, x को 1 अपॉन 2 लिया तो फंक्शन ऑफ 1 अपॉन 2 लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 1 अपॉन 2 इक्वल टू -4 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी s cos s माइनस साइन s अपॉन s क्यूब, ही टर्म एज इट इज cos s इंटू 1 अपॉन 2, x को रखा 1 अपॉन 2।
अब एफ ऑफ 1/2 क्या आएगा? अगर फंक्शन की डेफिनेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर फॉर मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 0 फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, 1/2 कहाँ पे? इस इंटरवल में या इस इंटरवल में? ऊपर वाली इंटरवल में या नीचे वाली इंटरवल में? यस, इट इज इन अपर इंटरवल। तो 1/2 का एफ कितना आएगा? ये डेफिनेशन लगेगी उस पर, 1 माइनस 1/2 होल स्क्वेयर, 1 माइनस 1/4, इट इज 4 माइनस 1 इज 3/4, इट इज 3/4, 3/4 equals to minus 4 by pi integration from 0 to infinity s cos s minus sin s divided by s cube into cos s by 2 ds। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको इनडायरेक्टली मिल गई है एंड द वैल्यू इज माइनस 3 पाई अपॉन 16, माइनस 3 पाई अपॉन 16। तो ऐसे डिफिकल्ट इंटीग्रल्स का आप वैल्यू ढूंढ पाते हो फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करके। ऐसे ही आप कौन सा मेथड लगाते तो फोरियर ऐसा इसका इंटीग्रल मिल पाता आपको? ये इंटीग्रल की वैल्यू पूछी थी, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? पहले दिए हुए फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, फिर उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, फिर जिस इंटीग्रल को पूछा है उस इंटीग्रल को देखते हुए x को क्या वैल्यू देनी है वो समझ में आ गया। फिर x को वैल्यू देने के बाद में f ऑफ x निकाला, f की डेफिनेशन को देखते हुए, उसको रेफर करते हुए, और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। एनी क्वेश्चंस? आज हमने क्या क्या सीखा? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, फिर हमने कहा फोरियर ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है, फिर फंक्शंस ऑड इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन, फिर 2 एग्जाम्पल्स, दोनों में फंक्शन का नेचर जांचा तो इवन थे इसलिए उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो गए। फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ढूंढ लिए, इंटीग्रल्स की वैल्यू ढूंढने के लिए इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म चलाया, और फिर x को पर्टिकुलरली वैल्यू 0 और 1/2 दी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटीग्रल, एंड इंटीग्रल्स की वैल्यू ढूंढी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। मैम गुड क्वेश्चन। एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? So could we stop here? Yes, ma'am. Yes. तो ये नोट्स मैं गूगल क्लासरूम पर शेयर कर लेती हूँ और ये रिकॉर्डिंग भी शेयर करती हूँ। कुछ छूट गया होगा तो वहां पर देख लेना, ठीक है? Yes. ओके।